ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਤੋ ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਇਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਉਜਾਲਾ ਸਿਗਨਸ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਈ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਆਨਰਡ। ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਈਡਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਫॉर ਐਵਰੀਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਅਪਾਹਜ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੂਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3D CT ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਲੈਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਵਿਦਿਨ ਅ ਡੇ ਉਹਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵਿਦਿਨ 10-15 ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਖੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏਗੀ 3D ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ 3D ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਜਰੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਅੰਗ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਮਹਾਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੋਪੜੀ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਖੋਪੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਟ 'ਚ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 3D ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਡੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਹੱਡੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪਾਈਨ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਪਾਈਨ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਟੂਲ ਫॉर ਟੀਚਿੰਗ ਯੰਗ ਸਰਜਨਸ। नेशनल मेडिकल कमीशन वो वर्कशॉप नहीं कंडक्ट करती, बट वो अपने जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस होती हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन में कुल 800 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज कंट्री में, तो उनको प्रमोट करती है कि ये जो स्किल और वर्चुअल ट्रेनिंग है, ये जो 3D प्रिंटिंग टूल्स है, उससे वो प्रमोट करे ये ट्रेनिंग एंड ये ट्रेनिंग को ज़्यादा बढ़ावा दे, क्योंकि नए जनरेशन के डॉक्टर के लिए ये बहुत अच्छे एजुकेशनल टूल है जो उनको जल्दी से जल्दी कॉम्पिटेंट बनाएंगे इसके लिए, और एट द सेम टाइम पेशेंट को उसका एडवांटेज मिलेगा दर्दियों को, क्योंकि ये प्रिसीजन टेक्नोलॉजी पेशेंट के आउटकम इम्प्रूव करती है, तो दोनों के लिए फायदा है। अमनदीप हॉस्पिटल तो मैं इसलिए ये चीज़ के लिए सराहना करता हूँ क्योंकि अमनदीप हॉस्पिटल पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर को ट्रेन करती है
National Board of Examination in Medical Science की एजेंसी पोस्ट ग्रेजुएट काउंसिल है गवर्नमेंट की, उसके तहत से एंड ये जो पर्टिकुलर टूल्स है वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग और ये जो 3D ये अभी से उनको सर्जनों को यंग सर्जनों को ट्रेन करेंगे तो आपको बेहतर सर्जन कल के लिए मिलेंगे जो दर्दियों के लिए ये आशीर्वाद रूप बन के रहेंगे। सो सर्टनली नेशनल मेडिकल कमीशन ऐसे ट्रेनिंग को प्रमोट करती है एंड हम गाइडलाइन इशू करते हैं, तो एडवाइजरी इशू करते हैं, तो हम गाइडलाइन और एडवाइजरी में हम इसको जरूर सपोर्ट करते हैं सभी इंस्टीट्यूशनों को एंड हम इंस्टीट्यूशनों को ये भी मोटिवेट भी करते हैं कि आप स्किल एंड वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर अपने इंस्टीट्यूट में बनाओ एंड आप यंग सर्जनों को ट्रेन करो। ये नेशनल मेडिकल कमीशन एडवाइस देती है। एक्शन तो हमने सीटी स्कैन या एमआरआई से करती है। दिस इज मेनली फॉर द पेशेंट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। सो बेसिकली आपने सीटी स्कैन किया पेशेंट का या एमआरआई किया, उसको आपने इनके या तो उनके प्रिंटर में अगर हम डालेंगे तो वी गेट अ 3D प्रिंट ऑफ द एमआरआई। सो दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड, हमको पता चल जाएगा इजीली, पेशेंट को भी समझाना आसान होगा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू नो समटाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट कि पेशेंट को समझाना बड़ी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि प्रॉब्लम क्या है। हमारा जो पर्पज है वो ये होता है कि हम रेस्टोर कर सकें दोबारा से इनिशियली जो उनकी अपीयरेंस थी, तो उसमें डेफिनेटली इट विल हेल्प अस, क्योंकि उसमें जो एक्यूरेसी है वो जब हम इस तरह के प्लांट यूज करते हैं तो उससे एक्यूरेसी 100% हो जाती है। अदरवाइज जब हम ये टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर पाते थे तो उससे उतनी एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं थी। नाउ इट इज नियरली 100% एक्यूरेसी व्हिच वी कैन हैव इफ वी हैव टू पुट एन इम्प्लांट इन द केस ऑफ फेशियल ट्रॉमा। लेकिन मैं एक चीज जो बताना चाहूंगा कि एज फार एज प्लास्टिक सर्जरी इज कंसर्न, इसका जो सबसे बड़ा यूज है वो है कैंसर वाले केसेस। जो कैंसर जबाड़े का कैंसर होता है जिसमें जो है मेडिकल जिसको हम बोलते हैं लोअर जॉ, वो निकालना पड़ता है। तो कैंसर सर्जन जब वो निकाल देता है तो हमें उसको रिकंस्ट्रक्ट करना होता है। तो जो हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे इस टेक्नोलॉजी के द्वारा, हम पहले भी कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा हमें एडवांटेज होगा टेक्नोलॉजी इन हाउस होने का वो ये है कि कैंसर वाले केसेस में बहुत बार हम इस टेक्नोलॉजी को इसलिए नहीं यूज करते थे कि अगर हम बाहर भेजेंगे उसका सीटी स्कैन और जब तक हमारे पास वो गाइड्स बन के आएंगी या इम्प्लांट बन के आएगा इट विल बिकम लेट। तो हम उस वजह से ये टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर पाते थे कई बार। तो अब इन हाउस टेक्नोलॉजी होने की वजह से हम कैंसर के जो सारे केसेस हैं जिसमें हमें जॉ रिकंस्ट्रक्ट करना है वो हम इस टेक्नोलॉजी से एक्यूरेट तरीके से कर पाएंगे। और जो दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि ये जो कैंसर सर्जरीज है ये लंबी होती है, तो उसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा। सो पेशेंट को एक लंबी सर्जरी से बचाया जा सकता है जिससे कि उसकी जो मॉर्बिडिटी है वो कम हो जाती है। टाइम शॉर्ट होने से जिसकी रिकवरी में भी ज्यादा फर्क डेफिनेटली रिकवरी भी फास्टर होती है और रिजल्ट्स इज मच बेटर। रिजल्ट इज बेटर एंड रिकवरी इज फास्टर एंड द कॉस्मेटिक रिजल्ट व्हिच यू गेट, जैसे किसी का जबाड़ा पहले निकल जाता था तो अगर हम नहीं बना पाते थे उसकी डिफॉर्मिटी क्रिएट हो जाती है, तो वो बंदा सोसाइटी में मूव नहीं कर पाता था कैंसर के बाद। अब कैंसर को जब आपके बाद रिकंस्ट्रक्ट करते हो और आप एक्यूरेटली रिकंस्ट्रक्ट करते हो तो नेचुरली इज बैक टू नॉर्मल।